ایک تھی شہزادی۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پہ گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہو جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسئلے سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مغروق تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گدھے سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اونٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اس رات سرخ آندھی چلی، بجلی کھڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھسنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر اپنے بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہوگی اور وہ لکڑہارے سے خاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری امداد کر سکے اور مجھے مل جائے۔ میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، اور وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پورا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہادی کو سنا دی۔
शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लक्कड़हारे से कहने लगी, मैं ही हूँ वो लड़की जिसकी माँ तेरे दर पर सवारी बनकर आती थी, मगर ऐ बदबख्त तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रह। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूर की गश्त पर था। उसका वहां से गुजरा हुआ वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देख पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसे में उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और इस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अरश पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन पर गिरता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसू इसका दिल भर आया और उसने माफ कर दिया। खुदा की कुदरत लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने भी उसे माफ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। मियाँ कालू। स्कूल से वापसी पर नन्हे मियाँ घर में दाखिल हुए तो सलाम किए बगैर ही सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजने पर नन्हे मियाँ की अम्मी ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से मोहल्ले की खातून गुस्से भरी आवाज में बोली, दरवाजा खोलिए, मैं शाहिद की अम्मी हूँ। नन्हे मियाँ की अम्मी ने दरवाजा खोला तो वो अपने बेटे शाहिद के साथ घर में दाखिल हो गई। कहाँ है ये नन्हा? मैं तो इसे बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन इसने तो हद ही कर दी। बहन, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताइए तो सही। नन्हे मियाँ की अम्मी ने नरम लहजे में शाहिद की अम्मी से पूछा। होना क्या है, मेरे बेटे का रंग काला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे कालू कालू कहता फिरे और छेड़ता फिरे। आज शाहिद रोते रोते घर वापस आया है। बहन, आप बैठ जाइए, मैं नन्हे को बुलाती हूँ। नन्हे मियाँ, कहाँ छुप गए हैं आप? फौरन इधर आइए, अम्मी ने गुस्से से कहा। कुछ देर बाद नन्हे मियाँ भी आ गए। नन्हे मियाँ के साथ उनकी दादी भी अम्मी की आवाज सुनकर आ गईं। शाहिद की अम्मी ने दादी को सलाम किया और सारी बात बताई। ये सब सुनकर दादी कहने लगी, नन्हे मियाँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दादी, शाहिद मुझे रोजाना चिढ़ाता है। नन्हे मियाँ ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अरे बच्चों, ये गंदी आदत कैसे पैदा हो गई? दादी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर दादी ने बच्चों को समझाते हुए कहा, किसी के बुरे नाम रखना, लंबे को लंबू, मोटे को मोटू और छोटे कद वाले को छोटू कहना, मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। मैं आप दोनों को एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, फिर मुझे बताना कि आप दोनों ने अच्छा काम किया है या बुरा। दादी ने बताया कि आलम इस्लाम के पहले मौज़िन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा स्याह फाम थे। एक शख्स ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस तरह पुकारा, अरे काली औरत के बेटे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी शिकायत की तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारे सीनों में अभी तक इस्लाम के पहले ज़माने का तकब्बुर मौजूद है। इसके बाद एक शख्स ने पता है क्या किया? दादी ने दरमियान में कहा, नन्हे मियाँ और शाहिद मियाँ, तुम दोनों इस बात को गौर से सुनो। इस शख्स ने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और कहा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब तक आप अपने पाँव मेरे चेहरे पर नहीं रखेंगे, मैं इस वक्त तक हरगिज़ अपने सर को जमीन से नहीं उठाऊंगा। आखिर एक शख्स ने बहुत जिद करने पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पाँव इस शख्स के चेहरे पर रखा। दादी ने दोनों बच्चों से पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम बताओ, आप दोनों ने अच्छा काम किया है या फिर बुरा?
नन्हे मियाँ फौरन बोले, दादी ये तो वाकई बहुत बुरा काम है, शाहिद मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं आइंदा कभी तुम्हारा ऐसे मजाक नहीं उड़ाऊंगा। शाहिद ने उठकर नन्हे मियाँ को गले लगाया और कहा, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूंगा। दोनों बच्चों को यूं मिलता देखकर शाहिद की अम्मी का गुस्सा ठंडा हो गया और उनकी वालदा और दादी दोनों खुश हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी के नाम नहीं रखने चाहिए। बेटे की जहानत। अब्दुल समद जासूसी नॉवल बहुत शौक से पढ़ता था। उसकी छठी हिस्ट्री तेज थी। अब्दुल समद अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। एक दिन अब्दुल समद के अब्बू अपनी वालदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर घर ला रहे थे तो एक लुटेरे की नजर में आ गए। रास्ते पर हजूम था तो इसलिए लुटेरे ने घर तक उनका पीछा किया। अब्बू ने पैसे लाकर अपनी अलमारी में रखे और लॉक लगा दिया और चाबी तकिए के नीचे रख दी। आधी रात के वक्त घंटी बजी। अब्बू दरवाजे तक गए और पूछा, कौन है? लुटेरे ने जवाब दिया, भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक होटल में बर्तन धोता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सर्दी लगी हुई है, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे कोई स्वेटर या चादर ला दें। अब्बू ये सुनकर सोच में पड़ गए। दादी ने कहा, ना जाने कौन है, बस इसको चलता करो। इतने में लुटेरा फिर बोला, भाई मेरा घर शहर से बहुत दूर है, मुझे बहुत सर्दी लगी है, मेहरबानी होगी मुझे कोई पुरानी सी चादर दे दो ताकि मैं सुकून तरीके से घर तक पहुंच जाऊं, वरना मुझे अंदेशा है कि मैं रास्ते में गिर जाऊंगा क्योंकि मुझे सर्दी की वजह से बुखार हो गया है। ये सुनकर अब्बू का दिल फिसल गया। अब्बू अंदर से एक बड़ा सा गर्म स्वेटर उठाकर लाए और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर स्वेटर आगे बढ़ाया तो लुटेरे ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया। जल्दी से तमाम रुपए मेरे हवाले करो वरना अगले यहाँ पहुंचा दूंगा। लुटेरे ने अब्बू की गर्दन पर छुरी रखते हुए कहा। अब्बू ने कमरे में आकर अलमारी खोली तो उसमें पैसे नहीं थे। अब्दुल समद जो उसी कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था कहने लगा, अब्बू जान, नईम अंकल की बेटी की शादी की तैयारी है, उनके पास नहीं थे पैसे तो वो उधार मांग रहे थे तो मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए। अब्बू हैरान होकर बोला, लेकिन बेटा इस वक्त तो। अब्दुल समद ने इनकी बात काट दी और कहा, हाँ अब्बू, वो अभी नईम अंकल घंटा भर पहले पैसे लेके गए हैं, सॉरी मैंने आपकी इजाजत के बगैर दे दिए। अब्बू इसलिए हैरान था कि आज तो कोई पड़ोसी इनके घर नहीं आया तो फिर ये अब्दुल समद क्या कह रहा है। बहरहाल कुछ सोच कर वो खामोश हो गए। उधर लुटेरा ये सुनकर ज्यादा हैरान परेशान हो गया। बहरहाल इसने सारे घर की तलाशी ली लेकिन उसे कुछ ना मिला। आखिर गुस्से में आकर उसने अब्बू से कहा, जेब में जो माल है दे दो। अब्बू ने अपनी जेब से सारी नकदी निकाल कर उसे दी जो तकरीबन 450 रुपए और कोई कीमती घर में नहीं थी। वो चला गया। दरअसल अब्दुल समद ने जैसे ही आधी रात के वक्त दस्तक की आवाज सुनी तो उसकी छोटी हिस्स बेदार हो गई थी। उसने जल्दी से 50,000 रुपए अलमारी से निकालकर लिफाफे में रखे और इस लिफाफे को फ्रिज के सब्जी वाले खाने में सारी सब्जियों के नीचे छुपा दिया। इस तरह उसकी चालाकी और फुर्ती से उसकी दादी के इलाज में काम आने वाले पैसे बच गए। तो जी बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस कहानी में अब्दुल समद की अक्लमंदी या जहानत की वजह से पैसे बच गए और यही पैसे जो है वो दादी के इलाज के लिए काम आए। मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे।
शेर जंगल का बादशाह था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था टोटो। वो बहुत बहादुर और समझदार था। जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब था, लेकिन इस तालाब में मगरमच्छ रहा करते थे। इस तालाब में मगरमच्छ अपनी मर्जी चलाते और किसी को तालाब से पानी नहीं पीने देते थे। मगर मगरमच्छ कहते थे कि पहले हमारे खाने को फल वगैरह लाओ और फिर पानी पियो। बेचारे जानवर जंगल से फल जमा करते और मगरमच्छों को ला कर देते, फिर मगरमच्छ उनको पानी पीने देते। सब जानवर मगरमच्छों से तंग थे, लिहाजा सब ने मिलकर सोचा कि हमें जंगल के बादशाह शेर को ये बात बतानी चाहिए। जानवरों ने कहा, अभी चलते हैं। इसी वक्त चालाक लोमड़ी बोल पड़ी, अगर शेर बादशाह इस मामले में पीछे हटा तो उसको जंगल का बादशाह करार नहीं दिया जाएगा। लोमड़ी ने सारे जानवरों को शेर के खिलाफ भड़का दिया। सब जानवर मिलकर जंगल के बादशाह शेर के पास गए और सारा मामला बताया और ये भी कहा, आप हमको इन मगरमच्छों से निजात दिलाएं, वरना आप ये जंगल छोड़कर जा सकते हैं। ये कहकर सब जानवर वहां से चले गए। ये सारा माजरा शेर का बेटा टोटो सुन रहा था। जंगल का बादशाह शेर सारी रात शेर परेशान रहा। टोटो ये सब देख रहा था। उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलवाया और उनसे कहा, इस जंगल के बादशाह शेर तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को का इतना ख्याल रखते हैं और आप हैं कि मुश्किल वक्त में इनका साथ छोड़ रहे हैं। चालाक लोमड़ी ने कहा, इस छोटे से बच्चे को क्या पता इन बातों के बारे में। लेकिन टोटो की ये बात जानवरों के दिलों में जड़ पकड़ गई और इन सब जानवरों ने बादशाह शेर के पास जाकर अपने रवैये की माफी मांगी और कहा कि हम सब मिलकर मगरमच्छों का मुकाबला करेंगे। सब सोच रहे थे कि मगरमच्छों का मुकाबला किस तरह किया जाए। इतने में टोटो बोल पड़ा कि मगरमच्छों को खाने का बहुत शौक होता है और उनका सबसे पसंदीदा खाना खरगोश है। अब तो शामत खरगोश की थी। इतने में हाथी बोल पड़ा, हम खरगोश को मार तो नहीं सकते। टोटो ने कहा, नहीं, हम इसे मारेंगे तो नहीं, हाँ इसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। सारे जानवर टोटो की शक्ल देख रहे थे कि इस छोटे से बच्चे को इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे सूझी। खरगोश को सबने हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी मदद से सब जानवर आराम से जिंदगी बसर कर सकेंगे। सबकी हौसला अफजाई पर खरगोश राजी हो गया। सबने एक बड़ा घड़ा खोदा और उसके ऊपर पत्ते डाल दिए ताकि मगरमच्छों को पता ना चले कि हमने उनके लिए जाल बिछाया है। अब काम शुरू हुआ। खरगोश मगरमच्छों से बगैर पूछे पानी पीने लगा। मगरमच्छों ने जब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक ने कहा, इसकी सजा ये है कि उसे खा जाएं। दूसरे मगरमच्छों ने सुना तो उसके मुंह में पानी बढ़ाया। खरगोश ने मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। खरगोश वहां से हल्के हल्के भागने लगा, मगर मगरमच्छ भी सामने में इसके पीछे भागने लगे। मगरमच्छ का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए जहां जाल बचा हुआ था। खरगोश जाल के ऊपर से छलांग मारकर दूसरी तरफ गिर पड़ा और सारे मगरमच्छ गड्ढे में गिर पड़े। इस तरह सारे मगरमच्छों को उनके किए की सजा मिल गई और खरगोश ने सुकून का सांस लिया। फिर सबने टोटो और खरगोश का शुक्रिया अदा किया और जंगल के बादशाह शेर ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। इस तरह सारे जानवर एक बार फिर पहले की तरह खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कहते हैं जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियां कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियां कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर मोहल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनका मियां कंजूस कहता था। खैर मियां कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, मगर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियां कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई इतना महंगा, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ते लेने हैं तो आगे जाओ। मियां कंजूस फौरन आगे हो गए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं।
नाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम क्यों बेचते हो? आम वाले ने कहा, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिले दीद थी, गले सड़े, जिनसे रस बह रहा था, हजारों की तादाद में मक्खियां बुनबुना रही थी। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम कितने किलो दिए हैं? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झुंझुलाए और बोले, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबूजी इससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहिए तो वो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब कुएं से किस तरह कदर निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियाँ कंजूस चीखने चलाने लगे। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। इसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो उसे रहम आ गया और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटका कर ऊपर से रस्सा मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रस्सा पकड़कर आ जाए। मियाँ कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी जरा सा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला उनका वजन ना सह सका और धड़म से कुएं में आ गिरा और मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चलाने लगे। उनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चलाना शुरू कर दिया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूसी ने तमाम बात उस आमों के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपए दें तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने 4 रोना 4 वादा कर लिया और जब दोनों का मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 के नोट मालिक को दिए और खाली हाथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिस कोको और आज मैं आपको एक मजे की कहानी सुनाऊंगी। कहते हैं कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेकी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने भी उसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा ही कर रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चिल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दे चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई, बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने की वो से सांप निकलकर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही।
दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में इसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। परियां और चमकीला पत्थर। एक दफा का जिक्र है कि दो परियां नाम ईमान और नीलम थी। एक दफा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ती जा रही थी कि अचानक ईमान की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम नीलम, वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहां जाना है। नीलम ने इस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा। क्योंकि हमारे वरदान ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ईमान ने कहा। अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहां चलें? नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा। नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान उस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे इस पत्थर को हाथ लगाती है तो फिर पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाती। रोशनी की वजह से नीलम की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती। ओह, ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई। ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई है। अचानक वहाँ एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई। तुम ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ईमान अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी क्योंकि उसके दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में ही मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा। ठीक है अम्मी, नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलका की बातें सुन ली और मलका और उनकी बहन इसे चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी। क्या कि ये पत्थर बहुत ही खास है और हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका,
मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मलका की बहन ने फिर कहा। फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। इन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितने को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए इसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया, और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या इसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम बात करते हुए उसकी माँ ने कहा, वो क्या? मेरी तरफ देखे, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी दरअसल ईमान और मैं, नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी है। ऐ मेरे खुदा, वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मम्मा आप अभी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ। नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है, चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती है। इस बुक को ढूंढकर मैं नीलम से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है, क्या हुआ ईमान, तुम ठीक हो? चमन ने कहा। मैं नीलम से राब्ता कर रही थी कि लेकिन नहीं हो रहा, ईमान ने जवाब दिया। हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम जाती है, वो जैसे ही आती है कि उसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिश के बाद फिर उसके एक बटन दब जाता है और वहाँ एक गार आ जाती है, और इस गार के अंदर जाती है कि वहाँ फितना सोई हुई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर खत्म कर देती है और फिर दोनों आजाद हो जाती हैं। चमन और ईमान एक दूसरे के गले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती हैं, और इसकी वजह से फितने का भी खातिर हो जाता है। नतीजा, हमें अपने वल्दैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और मुश्किल में हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वाला हाथी। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का भी बहुत शौक था, और वह उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी तो उसकी नजर आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उस हाथी का इंतजार करने लगे, आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की धुन पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। एक गरीब धोबी जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवा हो गए।
एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या है कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया तो धोबन ने सारा माजरा बता दिया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया। वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गया कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने के खाने लगा। सब गांव वाले उस ताक में थे कि जैसे हाथी गन्ने खा के फारिग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। कि किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहां कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वाले के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान बढ़ने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।